امریکہ نے تباہ-شدہ طیارے کے دوسرے پائلٹ کو بھی ایران سے نکال لیا۔ صدر ٹرمپ کی تصدیق، کہا کہ لاپتہ امریکی فوج کو ایران میں کامیاب آپریشن کے بعد نکال لیا۔ امریکی فوج نے تاریخی ریسکیو آپریشنز میں سے ایک کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ کئی گھنٹے پر محیط کارروائی میں درجنوں طیارے اور جدید ہتھیار استعمال کیے گئے۔ جنگ لڑنے والے کسی امریکیوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ فوجی اہلکار F-15 طیارے کا ویپن سسٹم افسر تھا۔ ایران پر مکمل فضائی برتری اور غلبہ حاصل ہو چکا۔ طیارے کو ایران میں فوجی کارروائی کے دوران جمعے کو گرایا گیا۔ 3 دن تک اہلکار کی تلاش جاری تھی۔ ایران نے امریکہ کے فوجی کو نکالنے کے مشن کو ناکام قرار دے دیا۔ خاتم الانبیاء مرکز ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا کہ دشمن کی اپنی تباہ شہید طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی کوششیں غیبی مدد، ایرانی افواج کی کارروائیوں اور مشترکہ آپریشنز کی بدولت ناکام ہو گئیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ٹرمپ نے پائلٹ کو بچانے کے لیے آپریشن کا دعویٰ ناکامی اور شکست چھپانے کے لیے کیا۔ ایئر فورس آفیسر کی تلاش میں شریک امریکی طیارہ تباہ کر دیا گیا۔ امریکی C-130 طیارے کے ساتھ ڈرون بھی تباہ کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پائلٹ کی تلاشی کے دوران 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گئے۔ امریکی صدر کا تہران پر حملے میں ایرانی فوج کی قیادت کو مارنے کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر قیامت ڈھانے کی نئی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں کہ تمام ایرانی فوجی رہنماؤں کو ختم کر دیا جن کا رویہ غیر محتاط تھا۔ اس حملے میں ایران کے بہت سے فوجی رہنما جنہوں نے ملک کی ناقص اور غیر دانشمندانہ قیادت کی ہلاک کر دیے گئے۔ امریکی صدر نے تہران پر حملوں کی ویڈیو ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دی۔ مزید کہا کہ ایران کے پاس وقت کم ہو رہا ہے، 48 گھنٹے باقی ہیں، معاہدہ نہ کیا تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنے یا آبدہ ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا۔ جارحیت جاری رہی تو پورا خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری کا امریکی صدر کی دھمکی پر رد عمل، کہا کہ ایران کی شکست کا وہم دلدل میں بدل گیا، امریکہ دھسے گا۔ جارحیت کا جواب شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ بڑھانے سے باز رہیں۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں سے نئے حملوں کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ کویت کے آئل سیکٹر کمپلیکس میں ایرانی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ کویت میں بجلی اور پانی کے 2 اہم پلانٹس پر بھی ڈرون حملے ہوئے۔ UAE کے پیٹرو کیمیکلز پلانٹ پر بھی حملوں کی وجہ سے کئی جگہوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کمپنی پر بھی ایرانی حملہ ہوا۔ ایران کا اصفہان میں ایک MQ-9 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے اب تک 7 امریکی طیارے تباہ کیے۔ نئے فضائی دفاعی نظام کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کی۔ امریکہ کی جنگ میں 13 فوجی مرنے کی تصدیق، 365 زخمی ہو چکے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی افواج کے حملے جاری۔ اسرائیل کا وسطی اور مغربی ایران میں چند اہم میزائل تنصیبات سمیت 120 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی صوبے کے ایک گورنر کے مطابق امریکی فوج کے حملوں میں کئی شہری جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ نے کوہ سیاہ، کاکان اور ورزک پر حملے کیے۔ لبنان میں بھی اسرائیل کے حملے، جنوبی علاقے کفر حطہ میں اسرائیلی حملے کی وجہ سے تباہی مچ گئی۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر میزائل داغے۔ لبنان کے ساحل کے قریب اسرائیلی بحیرہ کے جنگی جہازوں کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم سبسڈی پر پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ ملک میں ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسافر بس 1 لاکھ، وینز کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی دے رہے ہیں، ٹرک 70,000، مال بردار گاڑیوں کو 80,000 روپے ماہانہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ مسافر ٹرینوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ سبسڈی کا آغاز گزشتہ روز سے ہو چکا۔ امید ہے باقی صوبے بھی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جلد جمع کرا دیں گے۔ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، عوامی ریلیف کے لیے اقدامات اٹھائے اور اٹھاتے رہیں گے۔
सिर्फ महकमा एक्साइज में रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा की मीडिया से बातचीत, कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। बसों और ट्रकों के किराए बढ़ने से रोकने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफ़र का अमल शुरू किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर बोले कि खित्ते में कशीदगी के बाइस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। वज़ीर आज़म ने पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात किए। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। सिंध में जंग शुरू होने से पहले वाले किराए बरकरार रहेंगे। सिंध हुकूमत बसों को 2 लाख रुपए माहाना देगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध 1 माह में 14 अरब रुपए वफाक को देगा। किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किरायों के हवाले से आवाम की तकलीफ का एहसास है। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया है कि 28 फरवरी से पहले के किराए बरकरार रखेंगे। पूरी कौम को मसाइल समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। मौजूदा हालात में अफरात इज़्ज़त में इजाफा होगा। ताजिरों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत चल रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत के 18 कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात बोले कि अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के हबीबुल्लाह लालू समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CTT ने कहा कि अफगान शहरियों के जाली शनाख्ती कार्ड्स के मुतालिक तहकीकात जारी हैं। बन्नू के शहदा की नमाज जनाजा में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहिस्सी का वाज़ेह सबूत। बन्नू में फितना ख़वारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले ख़वातीन, बच्चों और दीगर की नमाज जनाजा अदा। हस्बे रवायत सुहेल आफरीदी शहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुए। सियासी मुफादात के लिए दीगर सूबों के चक्कर लगाने वाला वज़ीर आला सूबे के अवाम के गम में शरीक नहीं। दहशतगर्दी का शिकार सूबा और अवाम वज़ीर आला की तरजीहात में शामिल नहीं। बन्नू के अवाम ने कहा वज़ीर आला और अरकान असम्बली ने वाक़े की मज़म्मत तक नहीं की। सियासत अपनी जगह, मगर वज़ीर आला को बन्नू आकर हालात का जायजा लेना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायमंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के काबरीन मौलाना अमजद फ़ारूक, मौलाना आमिर, मौलाना मुदस्सिर शाहीन और दीगर से मुलाकात। भारत और बांग्लादेश से आए वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात की गिरा कदर खिदमात को सराहा। सालाना इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। रवा साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। आलमी सतह पर खलीजी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की पजीराई। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का भी ईरान को मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़। लिखा कि मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ने भी अमरीका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार की तारीफ की। चारों वज़राए ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी मिली, जिससे ईरान भी मुतमईन रहा। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को आबदा हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देकर एतमाद का इजहार किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का किरदार भारतीय शरंगेज़ किरदार के बरक्स है, जो ईरान के लिए एक मुखलिस भाई के तौर पर नुमाया है। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए मज़बूत किरदार अदा कर रहा है। चैलेंज से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। दुआ गो हैं अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों। इस्लामाबाद में मरिया एक्सप्रेस वे की अपग्रेडेशन का मरहला मुकम्मल। मज़ीद सहूलियात की फराहमी का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मरिया एक्सप्रेस वे का दौरा।
नए रेस्ट एरियाज, मसाजिद और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। लोअर चोपा राउंड अबाउट की डिजाइनिंग और ट्रैफिक के बहाव को मामूल पर लाने के लिए NHA को हदायत जारी कर दी। रेस्ट एरियाज में सफाई, पानी की फराहमी और खवातीन के लिए रहदा नमाज के इंतजामात के अहकामात दिए। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मरी एक्सप्रेस वे को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और आरामदेह बना दिया गया है। हेलीकॉप्टर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, एहसास फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिदायत पर स्कीम शुरू। मोटरसाइकिल स्कूटर तेहरान पर हमले में ईरानी 2000 रुपए फ्यूल सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान ही स्कीम के हल करार। दरखास्त के लिए दस्तक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन का अमल 6 अप्रैल से शुरू होगा। दुनिया भर में आज ईस्टर का त्यौहार। गिरजाघरों में दुआएं तकरीबात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा कि ईस्टर अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़ेह पैगाम देता है। मसीही मर्दों ख़वातीन हमारे इदारों में खदमात अंजाम दे रहे हैं। मसीही बरादरी को कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये दिन मसीही बरादरी और दुनिया के लिए अमन और खुशहाली लाए। शहरियों और अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के साथ यालाबारी। लाहौर, गुजरावाला और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। पेशावर के बड़नी नाले में तोगयानी 50 से ज्यादा घरों में पानी दाखिल। मस्जिद और स्कूल की ज़ेर-ए-आब। मरी में बारिशों के बायस झीका गली के करीब लैंडस्लाइडिंग। मस्जिद और कई मकान मुतासिर। बालाकोट के इलाके कागान फागल के करीब बारिशों के बायस पहाड़ का बड़ा हिस्सा सिरक गया। 30 से ज्यादा घरों को शदीद खतरा लाहक। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। माली साल 2024-25 के ऑडिट और मालियाती स्टेटमेंट्स की मंजूरी। ICC ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक PCB के प्रोसीजरल रूल्स मंजूर। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए इजहार दिलचस्पी और लाहौर के जोन्स की दोबारा हदबंदी की भी मंजूरी दी गई। PSL के लिए टीम्स के रिकॉर्ड नीलामी और आलमी सतह पर तरक्की के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मजीद कहा